السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ علم صرف میں ہم نصاب الصرف پڑھ رہے ہیں۔ نصاب الصرف کا 7واں سبق آج ہم کو پڑھنا ہے۔ علم صرف میں اب تک آپ حضرات نے گردانیں کر لی ہیں، ماضی کی تمام گردانیں، مضارع کی تمام گردانیں، امر و نہی کی گردانیں، یہ سب آپ کر چکے ہیں۔ اب کچھ قواعد ہم آپ کو ترتیب وار پڑھا رہے ہیں۔ نصاب الصرف میں 7واں سبق ابواب کے بیان میں ہے۔ ابواب کیا ہیں؟ پہلے میں اپنے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، مارنا پیٹنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن مجید پڑھنا، نصیحت کرنا، واعظ کرنا، جتنے بھی کام ہیں جو بھی ہم کرتے ہیں، اس کے لیے جو الفاظ آتے ہیں ان کو ہم افعال بولتے ہیں۔ فعل کی جمع افعال۔ تو آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوگا کہ لفظ کی 3 قسمیں ہیں کلمے کی: اسم، فعل، حرف۔ تو عربی میں آپ کچھ بھی پڑھیں گے تو وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ انہی سے بات بنتی ہے، کلمہ بنتا ہے، کلام بنتا ہے، اسی سے جملے بنتے ہیں۔ تو یہاں ہم اسم کی بات نہیں کر رہے ہیں اور حرف کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ فعل، اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کچھ چیزوں کا نام ہوتا ہے یا کچھ اشخاص کا نام ہوتا ہے یا کسی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ بہرحال نام، کسی بھی چیز کا، شے کا نام ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے۔ اور جو کام ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں، یعنی انسان کرتے ہوں یا جانور کرتے ہوں یا کوئی بھی کام ہو، وہ فعل ہوتا ہے۔ تو فعل کے لیے اب عربی زبان میں چونکہ افعال بہت زیادہ ہیں، لاکھوں افعال ہو سکتے ہیں، ہزاروں لاکھوں، تو الفاظ بھی ہزاروں لاکھوں ہوں گے۔ ہر کام کے لیے ایک لفظ ہے۔ تو یہ ہزاروں الفاظ کس طریقے پر بولے جائیں گے؟ تو اس کے لیے عربی زبان میں ابواب مقرر کیے گئے ہیں، یعنی وہ سمجھیے کہ وہ ہزاروں الفاظ کے لیے کچھ سانچے بنائے گئے ہیں، جو مخصوص حروف اور حرکتوں سے جوڑ کر کچھ سانچے بنائے گئے ہیں۔ وہ ہزاروں افعال میں سے کوئی بھی فعل آپ لیں گے، یہ جو سانچے ہیں کسی نہ کسی سانچے میں وہ بیٹھے گا، اسی کو ہم ابواب کہتے ہیں۔ تو یہ ہزاروں الفاظ کے لیے، لاکھوں الفاظ کے لیے جو عربی زبان میں سانچے ہیں وہ 43 ہیں۔ اسی کو ہم 43 ابواب کہتے ہیں۔ تو اس کی قسم اب وہ ہم ابواب کا بیان پڑھیں گے تو اس میں ثلاثی مجرد کے بارے میں ہم کو پڑھنا ہے۔ تو پہلے آپ ابواب 43 جو ابواب ہیں وہ کون کون ہیں، ایک بار میں آپ کو بورڈ پر سمجھا دیتا ہوں۔ پیچھے کے اسباق میں آپ نے پڑھا کہ 6 اقسام یعنی 6 قسمیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید۔ وہاں پر بتایا گیا تھا کہ خماسی مجرد اور خماسی مزید سے افعال نہیں آتے ہیں، اس سے صرف اسما آتے ہیں۔ افعال جو آتے ہیں ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید سے۔ تو اب تک جو آپ گردانے کیے ہیں وہ آپ نے فعلا سے کیے ہیں، یہ ثلاثی مجرد ہے، یہ ثلاثی مزید ہے، یہ رباعی مجرد ہے، یہ رباعی مزید ہے۔ ابھی تک آپ نے صرف ثلاثی مجرد کی گردان آپ نے کی ہے، جو فعلا یا فعلو سے آپ نے کی ہے۔ ابھی آپ کو ادھر بھی آنا ہے، ثلاثی مزید میں آنا ہے،
तो रुबाई मुजर्रद में आना है, रुबाई मजीद में आना है, इन सब में वो 43 बटे हुए हैं। अगर मैं आपको जोड़कर बता दूं तो इसमें 8 होते हैं, सुलासी मजीद में 2 होते हैं, सुलासी मजीद मुतलक और सुलासी मजीद मुल्हक। तो जो मुतलक होते हैं वो 14 हैं और जो मुतलक होते हैं 14 है, मजीद 17। रुबाई में एक ही होता है और रुबाई मजीद में 3 है। आप देख लीजिए 8, 14, 17, 1, 3, ये 43 हो गए। तो ये 43 अबवाब आपको सर्फ में पढ़ना है। सर्फ में क्या है, 3 ही चीज़ें हैं। एक तो ये अबवाब हैं जो 47 अबवाब आपको पढ़ने हैं, इसके बाद तालीलात आएंगे, उसके बाद खासियात आएंगे। अबवाब, तालीलात, खासियात आप पढ़ लें, इल्म सर्फ ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें आज के सबक में हम जो पढ़ेंगे इन सब के बारे में नहीं, सिर्फ सुलासी मुजर्रद के बारे में हमको समझना है। ये सब अभी आगे आएगा, अभी हमको ये सब नहीं, अभी सिर्फ ये हमको देखना है। आपने जो गर्दानें की है, फ़आला से माजी की गर्दान, फ़आला फ़आला मुकम्मल गर्दान, फिर मुजारे यफ़अलु, फिर अम्र इफ़अल और नहीं ला तफ़अल, वो सब इसी फ़आला से हैं। तो ये फ़आला में 8 हैं, तो वो 8 अबवाब ही आपको समझना है इस किताब की रोशनी में। तो पहले मैं आपको किताब की थोड़ी सी इबारत पढ़कर सुना देता हूँ, फिर मैं समझाऊँगा। अबवाब का बयान, अबवाब बाब की जमा है। इस्तिलाह सर्फ में मखसूस सुलासी मुजर्रद के माजी और मुजारे दोनों के पहले सिगे को मिलाकर उसे बाब का नाम देते हैं, और सुलासी मुजर्रद के अलावा मसादिर के मखसूस औज़ान को बाब कहते हैं, जैसे बाब ज़रबा यज़रिबु, बाब फ़तह यफ़तहु, बाब इफ़आल वगैरह। सुलासी मुजर्रद के 8 अबवाब हैं। उसमें भी 2 किस्में हैं, मुत्तरिद और शाज़। मुत्तरिद वो अबवाब जो कसरत से इस्तेमाल होते हैं, और ये 5 अबवाब हैं, नसारा यंसुरु, ज़रबा यज़रिबु, समिया यस्माउ, फ़तह यफ़तहु, करुमा यकरुमु। शाज़ वो अबवाब जो कम इस्तेमाल होते हैं, ये 3 अबवाब हैं, हसीबा यहसिबु, कादा यकादु, फ़ज़िला यफ़ुज़ुलु, ये 8 हो गए। अब मैं ये जो फ़आला है, पहले बाब को आप समझ लें। बाब में क्या होता है, आपने जो माजी की गर्दान की है उसका पहला सेगा, जो आपने माजी की गर्दान की उसका पहला सेगा है फ़आला, और जो मुजारे की गर्दान है उसका पहला सेगा है यफ़अलु। इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे तब बनेगा बाब। तो हम बोलेंगे फ़आला यफ़अलु, तब बाब बनेगा। अब इसको हम, आपने एक ही तरीक़े से गर्दान की है, वो फ़आला यफ़अलु, लेकिन ये 8 तरीक़े से होता है। उसको बहुत आसान करके मैं आपको समझा देता हूँ। आप पहले ये समझ लें कि ये आइन कलिमे को आप नज़र में रख लें। ये आइन कलिमा है फ़आला में दूसरे नंबर पर, यहाँ तीसरे नंबर पर आइन कलिमा है। इसी की हरकत यानी ज़ेर ज़बर पेश को हमें मखसूस अंदाज में बदलना है। अभी देखिए मैं आपको आसान तरीक़ा बता देता हूँ। पहले आप ये जो फ़आला है, फ़आला आप इसको लिखें, फ़आला। फ़आला आपने लिख लिया। इसी का एराब आपको बदलना होता है। अभी ज़बर है, अभी ज़ेर आएगा, फिर पेश आएगा। अभी जब ज़बर है तो इसके साथ हम लिखेंगे फ़आला यफ़उलु। देखिए यहाँ आइन पर ज़बर है, ज़बर के साथ यहाँ पेश। दूसरा आप लिखें, इसका ज़बर ज़बर ही रखें, यहाँ पेश को बदल दें, यफ़अलु कर दें आप। यहाँ पेश आपने दिया था, यहाँ ज़बर। फिर एक बार आप फ़आला लिखें, अब यहाँ पर आप ज़ेर दे दें, यफ़अलु। देखिए 3 बाब तैयार हो गए। 8 हमको तैयार करना है, 3 तैयार हो गए। आइन का ज़बर यहाँ तीनों जगह आप बरकरार रखिए, यहाँ बदलते जाइए। ज़बर के साथ एक बार पेश, एक बार ज़बर, एक बार ज़ेर। 3 हो गए। अब उसके बाद अब यहाँ बदल दीजिए, आप यहाँ कर दीजिए पेश,
फ़अला। अब फिर यहां से दोबारा इन्हीं को यहां लिख दीजिए, पहला वाला यहां लिखिए यफ़उलु, उसके बाद फिर यहां पर फ़अला लिखें, फिर दूसरा वाला यहां लिखें यफ़अलु, फिर अब फ़अला यहां लिखें, फिर लिखें यहां पर तीसरा वाला यफ़इलु। अब आप देख लें यहां पर, अब आप देख लें 6 अबवाब तैयार हो गए हैं, तैयार हो चुके हैं। अब फिर यहां पर देख लें, अब ये ज़बर हो गया, पेश हो गया। अब ज़ेर वाला हम करते हैं। ज़ेर वाला किस तरह करेंगे, यहां कर लेते हैं, इधर जगह ख़त्म हो गई है, यहां कर लें फ़ाइला, इसके साथ यही पेश वाला पहले रख लें यफ़उलु, फिर फ़ाइला यफ़अलु, फिर उसके बाद फ़ाइला यफ़इलु। देखिए ये तो 9 हो गए, मगर इसमें अभी एक ख़त्म हो जाएगा। आप देखें इसमें क्या है। अब आप किताब में आइए, सफ़ा नंबर 18 है, इसमें लिखा है अबवाब की अलामात नसरा यंसुरु, माजी मफ्तूहुल ऐन और मुजारे मज़मूमुल ऐन, यानी माजी में जिस पर ऐन पर ज़बर है और जिसके ऐन पर पेश, मुजारे में जिसके ऐन पर पेश है, वो कौन है। देखिए यहाँ माजी में ऐन पर ज़बर, मुजारे में ऐन पर पेश, ये है नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु। तो ये एक बाब है नसरा यंसुरु। इस बाब की अलामत क्या है, माजी में ज़बर होता है और मुजारे में आइन पर पेश होता है। यहाँ देख लीजिए आइन कलिमा स्वाद पर ज़बर है, यहाँ आइन कलिमा मुजारे में स्वाद पर पेश है। ये आइन कलिमा कैसे है वो पीछे के सबक की वीडियो में आप देख लीजिए। उसके बाद दूसरा बाब है माजी मफ्तूहुल ऐन और मुजारे मकसूरुल ऐन, यानी माजी में आइन पर फतहा होता है और मुजारे में कसरा होता है। यहाँ पर देख लें आप, माजी में आइन पर फतहा है और मुजारे में आइन पर कसरा है। ये है ज़रबा यज़रिबु, ये दूसरा बाब तैयार हो गया। अब देखिए समिया यस्माउ, माजी में आइन को कसरा, मुजारे में फतहा। कसरा में आइए आप, यहाँ है कसरा वाला, माजी में आइन को कसरा और मुजारे में फतहा यहाँ पर है, ये है समिया यस्माउ। उसके बाद आप देखें फतहा यफ्तहु, माजी मुजारे दोनों में आइन को फतहा यहां पर है, फतहा यफ्तहु। उसके बाद आए करुमा यकरुमु, माजी में और मुजारे में दोनों जगह आइन पर पेश, पेश वाले यहां हैं, दोनों जगह पेश, ये करुमा यकरुमु, करुमा यकरुमु। उसके बाद देखें हसीबा यहसिबु, दोनों जगह जेर, वो यहां है, हसीबा यहसिबु। उसके बाद है माजी मुजारे दोनों जगह, हाँ माजी में जम्मा और मुजारे में फतहा, ये माजी में जम्मा मुजारे में फतहा, ये हो जाएगा कादा यकादु। उसके बाद है माजी में आइन को कसरा और मुजारे में जम्मा, यहाँ है कसरा और ये जम्मा, ये हो जाएगा फजीला फजीला यफजुलु। अब देखिए ये एक बच गया, ये कोई बाब नहीं है, ये कोई बाब इससे नहीं बनता है। अब आप गिनकर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अबवाब हो गए। और इसमें ये नसरा, फतहा, ज़रबा, समिया और करुमा, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इनको मुत्तरिद कहते हैं। और बाकी जो
कादा या कादू है, हसीबा या हसीबू है, फजल अफजलू ये कम इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब आपका काम ये है कि अब आप इससे माजी मुजारे अम्र और नहीं की गर्दान करेंगे। नसरा यंसुरु ये एक बाब है, इसको याद रखने, बाबे नसरा यंसुरु, बाबे फतहा यफ्तहु, बाबे ज़रबा यज़रिबु, बाबे करुमा यकरुमु, बाबे कादा यकादु, बाबे फजिला यफजुलु, बाबे समिया इसमो, बाबे हसीबा यहसिबु। ये यहाँ की तरतीब आप किताब की तरतीब से याद कर लें। अब गर्दाने आपको सबकी करना है। अब देखिए इनका फ़ायदा क्या होगा कि ये अबवाब हैं, तो अब हम कहेंगे दाखिल होने के लिए अरबी में लफ्ज़ आता है दखाला। तो ये दखाला है, तो ये दखाला होगा कि दखिला होगा कि दखुला होगा। ऐसे ही यहाँ पर हम बोल रहे हैं यदखुलु, यदखुलु होगा कि यदखिलु होगा, यदखलु होगा। ये आप देखिए यहाँ आइन में ज़बर भी हो सकता है, पेश भी हो सकता है, ज़ेर भी हो सकता है। यहाँ मुजारे में आइन पर पेश भी हो सकता है, ज़बर भी हो सकता है, ज़ेर भी हो सकता है। तो अब ये दखला यदखुलु, इसका एराब अगर हम मिटा दें तो अब इस पर हम क्या एराब लगाएंगे, तो आपको डिक्शनरी में लिखा हुआ मिलेगा ये बाबे नसारा से है। बाबे नसारा से मतलब नसारा यंसुरु। अब हम क्या करेंगे, नसारा से जब ये है तो नसारा का एराब दे देंगे, ज़बर ज़बर ज़बर। देखिए ज़बर ज़बर ज़बर, उसके बाद ज़बर जज़म पेश और पेश यदखुलु। तो हमको मालूम हो गया कि दखला बोलना है, दखीला और दखुला नहीं बोलना है, और ऐसे ही यदखुलु बोलना है, यदखिलु या यदखलु नहीं बोलना है। तो ये हमको मालूम होता है। इस तरह सुलासी मुजर्रद यानी 3 हरफी फेल जब भी आएगा वो या तो नसरा यंसुरु के वजन पर आएगा, या फतह यफ्तहु, या ज़रबा यज़रिबु, या करुमा यकरुमु, या इसी तरह। तो ये जब 8 औज़ान हम याद कर लेंगे तो अब 3 हरूफ से जितने फेल आ रहे हैं जो हजारों हैं उनका फार्मूला सांचा आपको मालूम हो गया। डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा कि ये दखला, जैसे दखला नसरा से है, डिक्शनरी में आपको मिलेगा कि ये लफ्ज है। इसके बारे में आपको मिलेगा, इसका माना होता है समझना। ये बाबे समिया से है। समिया से होने का मतलब यहाँ है समिया यस्माउ, तो हम समिया के वजन पर फहीमा और यस्माउ के वजन पर यफहमू कहेंगे। तो सीन पर ज़बर, फिर मीम पर ज़ेर, फिर ऐन, यानी ज़बर ज़ेर ज़बर। देखिए ज़बर ज़ेर ज़बर, ज़बर जज़म ज़बर पेश, ज़बर जज़म ज़बर पेश। तो हमको कैसे पता चला कि इसको दखला बोलना है ज़बर के साथ, इसको फहीमा बोलना है ज़ेर के साथ, इसको यदखुलु पेश के साथ बोलना है, इसको यफहमू ज़बर के साथ बोलना है। ये हमको कैसे पता चला? यहाँ ज़ेर है, यहाँ ज़बर है, यहाँ ज़बर है, ये हमको इन्हीं अबवाब से पता चलता है। तो आप अब क्या करें, इसको याद कर लें। सुलासी मुजर्रद के ये अबवाब हैं, आपके किताब के सफ़ा नंबर 18 पर हैं। अब आप इनसे गर्दाने करेंगे। तो किस किस की गर्दाने आप करेंगे? माजी की गर्दान करेंगे, मुजारे की गर्दान करेंगे। मैं यहाँ आपकी सहूलत के लिए लिख देता हूँ, अब आप इसी अंदाज पर गर्दाने करें। आज का सबक मुकम्मल हो गया। नसारा, इसकी पूरी गर्दान कर लें। नसारा नसारा, नसरू नसरत नसरता, पूरी माजी की गर्दान। मुजारे की कर लें। यंसुरु यंसुरानी, यंसुरुना तंसुरु तंसुरानी, यंसुरना तंसुरु तंसुरानी, तंसुरुना तंसुरीना, तंसुरानी तंसुरना, अंसुरुन अंसुरु, ये मुकम्मल कर लें। उसके बाद अम्र कर लें। अम्र आएगा उनसुर, ये। फिर उसके बाद आप कर लें ज़रबा यज़रिबु, और यहां पर होगा इज़रिब। उसके बाद आप कर लें फतहा यफ्तहु इफ्ताह। उसके बाद आप कर लें
समिया यस्माउ इस्मा। उसके बाद आप कर लें करुमा यकरुमु उकरुम। ऐसे ही आप आगे की भी मैं लिख देता हूं आपकी सहूलत के लिए। करिमा आपने कर लिया था, अब आप एक बच गया है हसीबा यहसीबु इहसिब। इसको आप कर लें। अब जो रह गया है वो कादा या कादू और फजीला या फजुलू। तो ये जो फजीला या फजुलू है ये तो इस्तेमाल ही नहीं होता है, मतरूकुल इस्तेमाल है। और कादा या कादू बहुत कम इस्तेमाल होता है। आप इसकी गर्दानें आप छोड़ दें, बस इतने ही आप कर लें। और इसके बाद आपकी किताब में यहाँ नसरा यंसरू में दखला यदखुलू की मिसाल है, नसरा के साथ दखला की भी आप गर्दान कर लें। ज़रबा के साथ वहाँ गसला यगसिलू है, उसकी भी गर्दान कर लें। और समिया इस्माऊ के साथ फ़हिमा यफ़हमू है, उसकी गर्दान कर लें। ऐसे ही तरतीबवार आप गर्दानें कर लें। ये सुलासी मुजर्रद आप कर लेंगे। उसके बाद आप सुलासी मजीद पर आएंगे, फिर रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद। इसमें 43 जो होते हैं, 43 में पूरे 43 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये जो 8 हैं इसमें से 5 ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो मैंने आपको अभी लिखाया। इसमें से ये 14 ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये 17 बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ये इस्तेमाल होता है। और इसमें 3 होते हैं, ये भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये 17 तो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। फिर ये 8 में 3 बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें के जो 5 हैं और ये 14 हैं, ये 1 ये 3, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसमें भी इसमें जो 5 हैं और ये ज़्यादा, इससे 14 में भी कुछ हैं जो कम इस्तेमाल होते हैं। तो खुलासा ये हुआ कि ये 43 अबवाब में भी जो रनिंग में हैं, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वो वही 25 के आसपास, 20-25 आप कह लें, बाकी कम इस्तेमाल होते हैं। तो आपको इन पर अच्छी पकड़ हासिल कर लेना है और घबराना नहीं है कि 43 होंगे, हम कैसे सेट करेंगे। कुछ नहीं, आप गर्दाने सिर्फ कर लीजिए, हमारे बताने के मुताबिक आपको खुद ही सेट करना आ जाएगा। हत्तल इम्कान मैंने समझाने की कोशिश की, आप बार बार सुन लें, गौर से सुन लें। अगर कोई सवाल आपके रह गए हों तो आप दरसगाह में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।